ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਾਊਂਡਰ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 10 ਬਿਲੀਅਨ $US ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 19 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡੇ। ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? 19 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਟ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਦਿਨ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। 20 ਫੈਬਰਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗੈਪ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ। ਕਿੰਨਵਾਂ? 34th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ? ਇੰਡੀਅਨ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਲੀਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੰਨਾ? 14,000 ਟਨ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 14,000 ਟਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾ ਕੁੰਭ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? GI ਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਲਾ ਕੁੰਭ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ UP ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ? CM ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਯੁਵਾ ਉਦਯਮਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਭਿਆਨ। 2 ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? UP ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਹੈਲਪ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ 70th ਬਰਲਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70th ਬਰਲਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਫਰੋਮ ਗੁਜਰਾਤ। ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ 2020 ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਾਡ 2 ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੁਐਸਚਨ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਡ 2 ਮਿਸਾਈਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ
किस मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी स्ट्राइक रेंज 600 किलोमीटर है? राड 2। ठीक है, याद रखना है। नैक्सट है सुनील कुमार के रिगार्डिंग। सुनील कुमार ने जितया इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीको रोमन गोल्ड मैडल। ग्रीको रोमन गोल्ड मैडल जितया सुनील कुमार ने। ठीक है, कितने? एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच। एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच ये मैडल जितया सी। ठीक है, इतने थोड़ा कट गया। नैक्सट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा। लास्ट 2 वीडियोस तो इतने कुछ कट रहे। नैक्सट है गुजरात के रिगार्डिंग। गुजरात के रिगार्डिंग याद रखना 1 मई 1960। 1 मई 1960 ਨੂੰ गुजरात बनाया गया। कैपिटल गांधीनगर। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी है जिथे 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल हैल्ड किया गया सी। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन ने इत्थे दे? आचार्य देवव्रत। 33 डिस्ट्रिक्ट्स ने। लोकसभा सीट्स 26, राज्यसभा सीट्स 11 और विधानसभा की सीट्स ने 182 विधानसभा की सीट्स ने। ठीक है, याद रखनिया ने। बॉर्डर स्टेट्स राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। बॉर्डर किन्ना शेयर कर रहे हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। अच्छा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव तो याद रखना है कि इन्होंने दोनों एक सिंगल यूटी बनाने की गल चल रही है। ठीक है, इन्होंने दोनों एक सिंगल यूटी बना दिता जाएगा। ठीक है, दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर भी एक ने। कौन है इन्हों के एडमिनिस्ट्रेटर? प्रफुल पटेल। प्रफुल पटेल इसके एडमिनिस्ट्रेटर ने दमन एंड दीव के भी और दादरा एंड नगर हवेली के भी। दोनों को की करता जा रहा है कि मर्ज करने की गल चल रही है और होप्स हो इन्हों मर्ज कर दिता जाएगा। नैक्सट है बॉर्डर कंट्री। पाकिस्तान नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात। पाकिस्तान नाल भी बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने है? गुजरात के विच है। एनीमल, स्टेट एनीमल एशियाटिक लॉयन है और स्टेट बर्ड फ्लैमिंगो। स्टेट बर्ड है फ्लैमिंगो। स्टेट फ्रूट मैंगो और स्टेट ट्री बनियान। बनियान स्टेट ट्री है गुजरात का। इस तो अलावा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, 4 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने। इस तो अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने ने जी? ये सारियां गुजरात के विच ने। ठीक है, याद रखनिया ने। इस तो अलावा गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट बारे भी याद रखना है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के विच 182 मीटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। नर्मदा रिवर फ्लो करती है गुजरात के विचों। इस तो अलावा सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू याद रखना कितने है? अहमदाबाद के विच। सैकेंड टॉलेस्ट स्टैचू अहमदाबाद के विच है। नैक्सट है दिस ईयर, अज की फर्स्ट न्यूज़ है कि इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती का किनवा एडिशन मनाया गया? 19 फरवरी को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा से काफ़ी फेमस रूलर सीगे। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर वॉरियर सीगे। इन्हों की 19 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी। किनवी बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी? 390वीं। याद रखना है 390वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। ये याद रखना है। इन्हों के उत्ते एक मूवी भी रिसेंटली रिलीज़ की गई सी। किन्ना दी? तानाजी। तुहानूं याद होगा तानाजी मूवी रिलीज़ हुई सी जिहड़ी कि मराठा के उत्ते सीगी। इस तो इलावा याद रखना है 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी। किन्नवीं? किन्ना जी दी? गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी। 157th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी स्वामी विवेकानंद जी की। कदों मनाई गई सी? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को 157th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी, जिस दिन नैशनल यूथ डे सैलीब्रेट किया गया सी। ठीक है, 124th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी किन्ना दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी 23 जनवरी को। 23 जनवरी को मनाई गई सी। इस तो अलावा 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की अच्छा 550वीं मनाई गई सी 12 नवंबर को। और महात्मा गांधी जी की 2 अक्तूबर 150th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सी 2019 के विच। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनिया ने। इन्होंने नोट करते चलियो, सारी चीज़ां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने।
नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप। केड़ी कंट्री होस्ट करेगी 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप। केड़ी कंट्री होस्ट करेगी जी इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप। ठीक है, इसका हैडकुआटर कित्थे है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का कोलालंपुर मलेशिया दे विच। कित्थे जी कोलालंपुर मलेशिया दे विच इसका हैडकुआटर है। कौन होस्ट करेगा इंडिया होस्ट करेगा 2022 का। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस दे विच आपां डिस्कस करते हैं। इंडिया करेगा 2023 मैनस हॉकी वर्ल्ड कप। मैनस हॉकी वर्ल्ड कप करेगा इंडिया। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर दे विच, उड़ीसा भुवनेश्वर और रौरकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच। स्पेन और नीदरलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे 2021 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। इस तो इलावा स्पेन दे विच हैल्ड की गई सी COP 25 हैल्ड की गई सी स्पेन दे विच। स्पेन दे मैड्रिड दे विच हैल्ड की जानी सी चिली दे विच। चिली दी कैपिटल सैंटियागो। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इस तो इलावा COP 26 हैल्ड की जाएगी यूके दे विच। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच। स्कॉटलैंड दे विच यूके द्वारा अनाउंस किया गया आलोक शर्मा नू प्रेजिडेंट इसका COP 26 का। ठीक है, इस तो इलावा कतर दे विच हैल्ड होएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हैल्ड होएगा कतर दे दोहा दे विच। कतर दी कैपिटल दोहा इत्थे हैल्ड किया जाएगा। इस तो इलावा USA प्लस कैनेडा प्लस मैक्सीको। USA प्लस कैनेडा प्लस मैक्सीको तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे फीफा का 2026 वर्ल्ड कप। ठीक है, कौन होस्ट करेगा USA कैनेडा मैक्सीको। ये याद रखना है। नेक्स्ट है फेसबुक द इनसाइड स्टोरी बुक। फेसबुक द इनसाइड स्टोरी एक बुक है रिलीज़ किन्ना द्वारा लिखी गई है। इस बुक को लिखा गया जी स्टीवन लेवी द्वारा इस बुक को लिखा गया फेसबुक द इनसाइड स्टोरी। ठीक है, याद रखना है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर ने। ठीक है, याद रखने ने। जेफ बेजोस ने एमाजोन के फाउंडर ने। तो इन्हें रिलेटेड अपने हुणे डिस्कस किया है। $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा क्लाइमेट चेंज सब तो पहले क्लाइमेट एमरजेंसी किन्होंने डिक्लेयर की थी यूके ने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर किया सी। ठीक है, इस तो इलावा यूके की गल आई है। यूके के फाइनैंस मिनिस्टर बनाए गए हैं किन्होंने द्वारा बोरिस जॉनसन द्वारा। किन्होंने बनाया गया ऋषि सुनक बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा स्पेन ने भी रिसेंटली एमरजेंसी डिक्लेयर की है क्लाइमेट एमरजेंसी। ये याद रखना है। यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की थी। यूरोपियन यूनियन के बारे याद रखना है। 28 कंट्रीज़ होंदियां सी इस ते हुण हो गई ने 27। किहड़ी कंट्री ने रिजाइन किया ब्रिटेन ने इस एग्जिट किया। ब्रिटेन एग्जिट टर्म याद होगी कदों किया है। ऑफिशियली डेट याद रखनी है 31 जनवरी यूरोपियन यूनियन तो एग्जिट किया है। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इस तो इलावा सुंदर पिचाई गूगल के CEO सीगे। ठीक है, इन्होंने बनाया गया एप्पल का अल्फाबैट गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबैट का CEO बना दिता गया सुंदर पिचाई प्रमोट करके। ये याद रखना है। बिल गेट्स किसने ने माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर ने बिल गेट्स। ये याद रखने ने। अच्छा फेसबुक की गल आई सी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, अच्छा फेसबुक का हैडकुआटर कित्थे है। कैलीफोर्निया USA दे विच फेसबुक का हैडकुआटर है। 2004 दे विच फेसबुक बनाई गई सी। ठीक है, रिसेंटली फेसबुक ने इंस्टाग्राम मैसेंजर और वट्सएप तीनों एक्वायर कर लिया। ठीक है, तुसीं देखिया होगा वट्सएप के उत्ते भी लिखा आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के उत्ते भी फेसबुक लिखा आता है। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक और वट्सएप तीनों एक्वायर किया फेसबुक ने। नेक्स्ट है लैरी
टैसलर जिहदी रिसेंटली मौत हो गई है, ठीक है। ये किस चीज़ के इन्वेंटर सीगे, इन्होंने इन्वेंट किया सी एक स्पैशल चीज़ इन्होंने इन्वेंट की सी कट कॉपी पेस्ट, जिहड़ी कि अजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कंप्यूटर दे विच। कट कॉपी पेस्ट, किसी भी चीज़ को कट करना हो, कॉपी करना हो, कमांड्स होंगे कंप्यूटर से, जिवें कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, ठीक है। इन्होंने कमांड्स को किन्होंने बनाया सी, लैरी टैसलर ने। इन्हों की रिसेंटली मौत हो गई है, ठीक है, याद रखनी है। इस तो इलावा सी लैंग्वेज किन्होंने बनाई सी, डेनिस रिची। C++ बनाई सी बिजेन स्टाउटस्टॉप। ये करंट अफेयर्स का पार्ट ना होकर करंट अफेयर्स एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैरी टैसलर ਜਿਹੜੇ किस चीज़ इन्होंने की इन्वेंट किया सी, ठीक है। पर अगर आप कंप्यूटर की क्लास के हिसाब से देखिए तो इन्होंने सारे के फाउंडर्स अपने इंपोर्टेंट बनते हैं। वर्ल्ड वाइड वैब के फाउंडर ने टिम बर्नर्स-ली। IP एड्रैस कि इन्होंने बनाया सी, IP एड्रैस बनाया सी विंट सर्फ CERF विंट सर्फ, ठीक है। ये सारे याद रखने ने। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फीफा अंडर-17 वूमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा का अंडर-17 वूमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप कित्थे नहीं होस्ट किया जा रहा। इन्हां 5 सिटीज़ किहड़ी जगह पर होस्ट नहीं किया जा रहा। एक्चुअली की अनाउंस किया गया कि फीफा का अंडर-17 वूमेंस वर्ल्ड कप इंडिया के होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उस तो बाद दस्सिया गया कि इंडिया की 5 सिटीज़ होस्ट किया जाएगा, और इस 4 सिटीज़ ऐसियां ने जिस होस्ट किया जाएगा और एक सिटी नहीं किया जाएगा। वो किहड़ी है? चेन्नई की जगह पर आंसर की आएगा कोलकाता, ठीक है। चेन्नई की जगह पर इत्थे की आएगा कोलकाता। यानी कि फीफा का अंडर-17 वूमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नवी मुंबई और कोलकाता, इन्हां 5 सिटीज़ होस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसकी थीम की रहेगी, इसका थीम नहीं कह सकते आप, स्लोगन कह सकते। इसका स्लोगन सीगा किक ऑफ द ड्रीम इज द स्लोगन है, ठीक है। किक ऑफ द ड्रीम। अहमदाबाद के आप डिस्कस किया 31 इंटरनेशनल काइट फैसटिवल, ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के खेलो इंडिया यूनीवर्सिटी गेम्स हैल्ड की जाएगियाँ। गुवाहाटी खेलो इंडिया गेम्स हैल्ड की जा चुकी ने। नवी मुंबई के बनाया गया उत्तराखंड भवन इनोग्रेट किया गया नवी मुंबई के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा प्लस मुंबई महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा, ठीक है। इन्होंने दोनों ने मिलकर उत्तराखंड भवन को नवी मुंबई के लॉन्च किया, यानी कि इनोग्रेट किया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट GC मुर्मू द्वारा जिहड़े कि जम्मू एंड कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस किया गया जम्मू एंड कश्मीर भवन बनाया जाएगा मुंबई के, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC कह सकते हैं, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किन्होंने अपॉइंट किया गया? ये किया गया बिमल जुल्का। सैकेंड ऑप्शन, बिमल जुल्का नू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, ठीक है। ये याद रखना है। इस तो इलावा सुनील अरोड़ा ने अपने चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने इलैक्शन कमीशन नू की दिता गया सिल्वर फॉर एक्सीलेंस। आप डिस्कस किया सिल्वर फॉर एक्सीलेंस इलैक्शन कमीशन नू इंडियन इलैक्शन कमीशन नू दिता गया। इस तो इलावा सुनील अरोड़ा नू की बनाया गया प्रेजिडेंट बनाया गया ईस्ट एशिया इलैक्शन बॉडीज़, एशिया की जिन्नी इलैक्शन बॉडीज़ सीगियां उन्हां दा चेयरमैन बनाया गया सीगा, ठीक है। ये भी याद रखना है। इस तो इलावा हर्षवर्धन श्रिंगला रिसेंटली बनाए गए हैं फॉरन सैकटरी बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रिंगला विजय केशव गोखले नू रिप्लेस करके। देबाशीष पांडे इन्होंने बनाया गया फाइनैंस सैकटरी, इंडिया के फाइनैंस सैकटरी बनाया गया देव आशीष पांडा, ठीक है। इन्होंने किस नू रिप्लेस किया? राजीव कुमार नू रिप्लेस करके देवाशीष पांडा नू बनाया गया सी, ठीक है। ये याद रखना है। इस तो इलावा शरद कुमार बारे याद रखना है। इन्होंने बनाया गया चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन ने? शरद कुमार ने, ठीक है। कौन ने? शरद कुमार ने। ये याद रखना है।
नेक्स्ट है, इन विच स्टेट टी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड रन फॉर इंडिया टीम इवेंट, टी इवेंट। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रन फॉर टी इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कित्थे, किहड़ी स्टेट दे विच किया गया, ये किया गया त्रिपुरा दे विच। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और अगरतला दे विच इस इवेंट नूं ऑर्गेनाइज किया गया। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला दे विच इस इवेंट नूं ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा त्रिपुरा दे विच हॉर्नबिल फैसटिवल भी सैलीब्रेट किया गया सी त्रिपुरा दे विच। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, मणिपुर के उखरूल दे विच की मनाया गया, लीली फैसटिवल मणिपुर के उखरूल दे विच। मिजोरम दे विच चपचार कूथ फैसटिवल मिजोरम दे विच मनाया गया। ठीक है, मेघालय द्वारा मनाया गया किहड़ा फैसटिवल, मेघालय के शिलोंग दे विच चैरी ब्लूजम फैसटिवल ठीक है मनाया गया। इस तो इलावा असम दे विच खेलो इंडिया गेम्स का 3rd एडिशन हैल्ड होया सी। ठीक है, आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि खेलो इंडिया गेम्स का 3rd एडिशन असम दे विच होया सी, असम के गुवाहाटी दे विच। ठीक है, मैडल टैली नूं टॉप किया सी महाराष्ट्र ने, किन्ने मैडल्स दे नाल 256 मैडल्स दे नाल। मैडल टैली नूं 256 मैडल्स नाल टॉप किया, जिस दे विचों 78 गोल्ड मैडल सीगे, 78 गोल्ड मैडल सीगे, याद रखने। सैकेंड नंबर पर हरियाणा रहा सी, 3rd नंबर पर दिल्ली रहा सी, 3rd नंबर पर दिल्ली। हरियाणा के आई थिंक 200 मैडल सीगे और 68 गोल्ड मैडल सीगे और इसदे सीगे 122 समथिंग, 122 और 39 गोल्ड मैडल्स, 122 एंड 39 गोल्ड मैडल सीगे दिल्ली दे। ठीक है, ये याद रखने ने। इस तो इलावा एक इवेंट सीगा, एक फैसटिवल सीगा, कित्थे मनाया गया, मणिपुर दे विच एक होर फैसटिवल सैलीब्रेट किया गया रिसेंटली, आप थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसना है कि उस फैसटिवल का की नाम सी जिहड़ा कि मणिपुर दे विच सैलीब्रेट किया गया। ठीक है जी, ये यार ये दसना मैनूं कमेंट बॉक्स में तुसीं। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं, एज पर स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020, स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किहड़े बर्ड की स्पीसीज़ ने इंक्रीज़ की है, बिग इंक्रीज़ इन पॉपूलेशन के विच उन्हां दी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होया है। किहड़े बर्ड की पॉपूलेशन इंक्रीज़ हुई है, इंडियन पी फोल या फिर आप की कह सकते हैं पीकॉक कह सकते हैं, जिहड़ा कि इंडिया का नैशनल बर्ड है। इंडिया का नैशनल बर्ड किहड़ा पीकॉक है, ये तो हर एक नूं पता होएगा, पर इसकी जिहड़ी पॉपूलेशन है इसनूं स्टेट ऑफ बर्ड्स इंडियाज़ बर्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसकी पॉपूलेशन ने अप्रोक्सीमेटली डबल होए, इसकी पॉपूलेशन अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई है जिन्नी कि पहला सी। ठीक है, ये याद रखनी है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन अगर आप डिस्कस करिए, रूबी गुला एक फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, जिसनों की बनाया गया सी मैस्कोट बनाया गया सी किसदा, नैशनल गेम्स का हैल्ड किए जाएंगे गोवा के पंजी दे विच हैल्ड की जाएगियाँ। रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल नूं इसका मैस्कोट बनाया गया सी। ठीक है, इस तो इलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नूं बनाया गया मैस्कोट किसदा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नूं मैस्कोट बनाया गया COP 13 या फिर कह सकते हैं बून कॉन्फ्रेंस का मैस्कोट बनाया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नूं। राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, रूबी गुला गोवा का स्टेट बर्ड है, इस तो इलावा ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है केरला का, याद रखना केरला का स्टेट बर्ड है। हॉर्नबिल फैसटिवल हैल्ड किया जाता है त्रिपुरा दे विच। ठीक है, इस तो इलावा नागालैंड दे विच, त्रिपुरा और नागालैंड दोनों दे विच हॉर्नबिल फैसटिवल हैल्ड किया गया सी। हाउस स्पैरो न्यू दिल्ली का स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। ठीक है, कित्थे दा स्टेट बर्ड है, न्यू दिल्ली का स्टेट बर्ड है। न्यू दिल्ली दे विच इलैक्शनस हैल्ड किए गए, न्यू दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल थर्ड टाइम सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, याद रखना 3rd टाइम सरकार बनाई है, 2013,
और 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has been appointed as chairman of pension fund regulatory and development authority। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਸੁਪ੍ਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ। ਸੁਪ੍ਰਤੀਮ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਅਗਸਤ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। 23 ਅਗਸਤ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਪਲੱਸ ਆਰਚਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਚਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਉਮਰਾਓ ਸਿਸੋਕੋ ਐਂਬਾਲੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ? ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਦੇ? ਗਿਨੀਆ ਬਿਸਾਊ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਮਰਾਓ ਸਿਸੋਕੋ ਐਂਬਾਲੋ। ਅਨਿਲ ਖੰਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਕੁਈਨ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਈਨ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫॉर द ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਵੇਲਸ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ। नेक्स्ट है 21 फरवरी इज़ सैलीब्रेटेड एज 21 फरवरी ਨੂੰ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬੋਰਡਰ। लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर इस दी थीम रही थी, ठीक है, याद रखना है। अच्छा बाकी डेज आप डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है 24 जनवरी ਨੂੰ। 24 जनवरी ਨੂੰ इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। नैशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 26 जनवरी ਨੂੰ। सॉरी ये उल्टा दसता है। नैशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी ਨੂੰ। नैशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी ਨੂੰ और इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी ਨੂੰ, ठीक है। वर्ल्ड सोशल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है 20 फरवरी ਨੂੰ। नैशनल वूमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी ਨੂੰ। 13 फरवरी ਨੂੰ नैशनल वूमेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। ये कदों किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी के लिए, ठीक है। ये दिन मनाया जाता है जेडे कि फस्ट वूमेन गवर्नर बने सी यूपी दे, या फिर इंडिया के विच फस्ट वूमेन गवर्नर सरोजनी नायडू से। ये भी याद रखना है, ठीक है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया इन्हों कहा जाता सी। ये सारे दिन याद रखने ने। नैक्सट है इंडिया रैंकड एट विच रैंक आउट ऑफ 180 नेशंस इन WHO चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडैक्स रिलीज़ किया गया, जिस दे विच 180 नेशनस दे विचों 180 देशों के विचों इंडिया का रैंक कितना रहा सी? इंडिया का रैंक रहा सी 180 चों 131। कितना रैंक रहा इंडिया का? 131वां रैंक रहा इंडिया का। इस दे बारे में कन्फर्म नहीं है कि इसनों टॉप नॉर्वे ने किया, वैसे इसनों टॉप नॉर्वे ने किया और सैकेंड प्लेस से साउथ कोरिया रहा सैकेंड प्लेस से। पर इस बारे हजे मैं कन्फर्म नहीं है, इसनों पक्का करके मैं दस दाँगा कल की वीडियो अपनी, यानी कि मंडे की वीडियो के विच।
बाकी ऑप्शन ਆਪਾਂ डिस्कस कर लेने। बाकी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है 129th रैंक ਰਿਹਾ ਸੀ इंडिया ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ UNDP ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। टॉप किया सी नॉर्वे ने, इस टॉप किया सी नॉर्वे ने। अच्छा UNDP ने रिसेंटली SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स भी रिलीज़ किया है। इस इन्होंने कहा कि तेलंगाना ने टॉप किया है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडैक्स रिलीज़ किया गया सी किसके द्वारा किया गया सी नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा जोड़ा किया गया उस इन्होंने कहा सी केरला ने टॉप किया सी। ठीक है 63rd ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट रैंकिंग है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। 63rd रैंक रहा सी इंडिया का जिसनों रिलीज़ किया सी वर्ल्ड बैंक ने और टॉप किया सी न्यूजीलैंड ने। टॉप किया सी न्यूजीलैंड ने। 68th रैंकिंग रही सी ग्लोबल कंपीटीटिव इंडैक्स। ग्लोबल कंपीटीटिव इंडैक्स के विच इंडिया की रैंकिंग रही सी 68th वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा इसनों रिलीज़ किया गया सी और टॉप किया सी सिंगापुर ने इस दे विच टॉप किया सी। 102 ग्लोबल हंगर इंडैक्स सीगा 102 रैंकिंग रही सी इंडिया की। ठीक है ग्लोबल हंगर इंडैक्स। ठीक है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस इंटीग्रेट्स हिम्मत प्लस एप्लीकेशन विद उबर फॉर पैसेंजर सेफ्टी। एक स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया उबर कंपनी नाल एग्रीमेंट किया हिम्मत प्लस एप्लीकेशन रिलीज़ की गई है पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। हिम्मत प्लस एप्लीकेशन रिलीज़ की गई। एग्रीमेंट कितना किया उबर के नाल। उबर कंपनी नाल किया किहड़ी स्टेट की पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने एग्रीमेंट किया उबर के नाल। ठीक है याद रखना है। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शनस की गल करिए बाकी ऑप्शन के विच गोवा पुलिस ने की किया सी। गोवा पुलिस ने नहीं कह सकते गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इन्होंने दोनों ने मिलकर फिट इंडिया साइक्लोथ्रोन लॉन्च किया सी। ठीक है आंध्र प्रदेश दिशा पुलिस स्टेशन फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन बनाया गया सी आंध्र प्रदेश के विच। ठीक है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगमोहन रेड्डी द्वारा इसनों इनोग्रेट किया गया सी। ठीक है ये याद रखना है। इस तो इलावा महाराष्ट्र पुलिस ने की किया सी इंटरनेशनल मैराथन हेल्ड की सी महाराष्ट्र पुलिस ने जिसकी थीम रही सी हेल्थ रन जिसकी थीम रही सी। ठीक है महाराष्ट्र स्टेट पुलिस द्वारा इंटरनेशनल मैराथन MP ई कोप एप्लीकेशन लॉन्च की थी MP पुलिस द्वारा। ठीक है जिस नाल वो वूमेन सेफ्टी के उत्ते यानी कि स्पैशल वूमेन सेफ्टी के लिए ई कोप एप्लीकेशन किया गया सी। ठीक है अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन लाइक और शेयर जरूर कर दे दो अपने फ्रेंड्स के नाल जिहड़े भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।